Hi everyone, welcome to the Prep B. In this video, I'm going to tell you how to fill the CAT 2024 form. As you know, the CAT 2024 form are out, and yeah, it is on 1st of August, and I think we are late, but still, it will going to helpful to you because most of you started form filling, and I see in the groups also you have doubts related to some marks related and work X. So all the thing I'm going to clear in this video. Also, just note down the important dates. You can see the September 13th was the last date for registration. It might get extended, but yeah, I would recommend you to fill before this date. Apart from this, the admit card will out on 5th November and paper is on 24th November. So yeah, you can see in this tab, there are lots of options. You can see here there is certificates. Okay, so it is for your reference. So I will let you know is about its certificate which are used like you need in the upcoming like filling the form time. So I will let you know अभी के लिए इसे रहने दो. Okay, you can see here a quick tour also. So you can check out this if you want. Otherwise मैं तो जो भी यहाँ पे करवाने वाला हूँ everything will be get covered. Most of the people have doubt that what is this registration of non-IAMS institution for CAT. So people like new buddies, those who are filling the form for first time, they thought कि यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो नॉन आईएम्स अप्लाई हो जाएगा. नो गाइस, दिस इज नॉट फॉर यू. दिस इज फॉर द इंस्टीट्यूट. Okay, let's see. You can see the institute like IFT, MDI, SPGen. If they want your scores, then they will fill this like a form and register themselves for the CAT 2024. Okay, so that आपका जो result है उनके पास पहुंच जाए. तो ये आपके लिए नहीं है. So you can simply ignore this. Your like you have to focus on here. New registration, right? So here you have to register yourself. So what you can do, simply click on the registered part. You can see this kind of form will loading. Okay, yeah. So yeah, this is the something. Okay, तो मेरा तो Chrome ही है. Okay, no worries. This is the application number. Okay, you can ignore it. I agree कर दो. Now see this, the name of candidate. So remember what you have to do. You have to fill the name exactly similar to what you have in your admit card of 10th, or you can say 10th certificate or 12th certificate. But in some cases एक होता क्या है ना, कुछ लोग नेम चेंज कर लेते हैं in their career stage. Let's say किसी ने अपने ग्रेजुएशन में नेम चेंज कर लिया है. So for those people I would recommend you to fill your name as per your current name. Like let's say कि मेरा नाम पहले था सुमित. Okay, but I changed it and I said my name is now सुयश. Okay, ऐसे मेरा नाम नहीं है, मेरे भाई का नाम है. तब मैंने नाम चेंज कर लिया. मैंने कहा आप सुयश है मेरा, पहले सुमित था बट अभी तो ये है. तो आप ये फिल करो, ना कि पुराना वाला जो 10th में है. जो आपका करंट में हो वही फिल करना है. बट रिमेंबर यू शुड हैव अ वैलिड प्रूफ फॉर द सेम. लाइक यू शुड हैव एफिडेविट कि यस योर नेम शुड बी चेंज. तो ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए. आई होप इट इज़ क्लियर. सो एज पर माई एडमिट कार्ड और 10th certificate, my name was Das Sumit Raju. So it is like Sumit Raju Das. This is my father name. दास मेरा पहले क्यों आ रहा है, तो इट इज ऑल्सो दोज हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र, उन्हें थोड़ा इश्यू आता है. देखो पहले सरनेम आता है एज पर आर 10th सर्टिफिकेट, तो यू हैव टू फिल एग्जैक्टली सेम. तो जैसा आपके सर्टिफिकेट में सेम लिखो. फर्स्ट सरनेम, देन नेम, देन व्हाट योर मिडिल नेम इफ यू हैव. Okay, otherwise if you have single name, so no worries. Then date of birth, email address, you can again confirm your email address by filling this. Country, select India. Mobile number. Once you fill these all parts, you will get a generate OTP. Okay, when you generate OTP, you have to confirm OTP and you have to register yourself here also. ये सब करने के बाद बहुत से लोग को इश्यू आता है कि अब क्या होगा, आगे क्यों नहीं जा रहा. तो भूलो मत, यहाँ पे कैप्चा है. यू हैव टू फिल दिस कैप्चा ऑल्सो. यू कैन सी हियर वी, यहाँ पे ई लिखा है, तो आपको देख के फिल करना है. यू हैव टू फिल दिस कैप्चा and then you have to like click on I agree and then confirm this. Once you confirm this, then you will get your like a ID and pass generated. एक बार आपने confirm कर लिया तो आपको ID pass आपके number पे, you can say your simple message, and even in email also you will get your ID and pass. So because I already created my account, so I'm not going to fill it again. Okay, तो आप यहाँ से जाके fill कर सकते हो. I hope ये clear हो. Remember, आप जो भी यहाँ fill करने वाले हो ये change नहीं होने वाला है. Okay, ये कुछ भी चीज चेंज नहीं होगा. आपका ईमेल जो है टिल द एंड ऑफ योर लाइक, जब तक आप
बी स्कूल में नहीं चले जाए तब तक आपका ईमेल सेम ही रहेगा फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी आपका कम्युनिकेशन होने वाला है इसी ईमेल पे होने वाला, तो सोच समझ के फिल करना। डेट ऑफ बर्थ बाद में चेंज नहीं होता है, तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान से 2 बार चेक करो, फिल करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। ओके, so hope it is clear. Once you like submit this and you will get your ID and pass, you can simply come to the main page here and you can see here registered candidate login option. You simply click on login. Now you will get a registered user ID. तो जो user ID आपको मिला वो fill करो. You will get a password, जो भी मिला आपको fill करो. So this is my user ID and password. Like again captcha, you have to fill the captcha, otherwise उसके बिना आप आगे नहीं जा सकते हो. So you can see I am logged in. Now जैसे ही आप लॉग इन करो तो यू कैन सी दिस इज, आपको दिख रहा होगा यूजर आईडी वॉट एवर यू हैव फिल्ड टिल नाउ. ओके, तो ये सब आपको दिख जाएगा एंड यू हैव टू सिंपली क्लिक हियर गो टू एप्लीकेशन. So you will get this kind of your form. You can see here there are some important notice like or note. You can read it if you want. You can see here the password of your cat 2024 application form will expire every 90 days. तो एक बार चेंज कर लेना पासवर्ड, जो आपको भी मिला उसे चेंज कर दो. एंड आई थिंक इसके पहले तक आपका कैट का आई थिंक आप उसके बारे लॉग इन कर भी लोगे तो चेंज कर लेना इफ़ यू वांट. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इफ यू फॉरगेट द पासवर्ड या फिर चेंज नहीं हो रहा हो, अगर एक्सपायर हो गया हो, तो यू कैन सिंपली यूज फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन एंड अगेन यू कैन लॉग इन. तो जैसे कि मैंने फिल किया था मेरा नाम, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम नेम. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल द कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम. ना अगेन बहुत लोगों को इशू होता है कि मैंने फर्स्ट नेम तो यहाँ पे दास लिखा है, आई थिंक माई सर नेम, तो क्या मैं यहाँ पे ये फिल करूँ? नो, वो तो एज पर योर लाइक सर्टिफिकेट था ना. बट एक्चुअल में क्या आपका, तो एक्चुअल नेम इज माई सुमित, तो आई कुड सिंपली फिल सुमित. माई मिडल नेम इज माई फादर नेम and here is my surname, that is Das. Here again you have to fill your guardian or father. So if you have your guardian with you, you can simply fill guardian name or you can fill father name. So here my father, again here is your mother name. So ध्यान से करना ये सब चीज चेंज ना हो. If you are married and you can fill here your spouse name. Now again date of birth ये चेंज नहीं होने वाला, as I told you. Gender, तो अकॉर्डिंग टू यू लाइक जो भी जेंडर है आपका फिल कर सकते हो. इंडियन. Category, now see this is the important. In this section most of you have doubt, तो as मैं तो जनरल से हूँ बट फिर भी मैं सबके लिए बताऊंगा. So if you are from EWS, simply when you click on EWS you will get, you can see यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट पूछा है. तो आपको सर्टिफिकेट जब भी आपने इशू करवाया उसका डेट आपको यहाँ पे डालना है. रिमेंबर सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए. EWS 1 ईयर के लिए वैलिड होता है. तो अगर आपका इनवैलिड है आई वुड हाईली रिकमेंड अभी जाओ, अभी अप्लाई करो, बहुत टाइम है आपको. आराम से September 13 लास्ट डेट है, उसके पहले तक आपको मिल जाएगा. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्टेट, जो भी स्टेट से हो आप जस्ट सिंपली चूज योर स्टेट. लेट्स से आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई विल चूज महाराष्ट्र. कास्ट नंबर, इफ यू हैव योर कास्ट यू कैन फिल, ये मैंडेटरी नहीं है, यू कैन इवन इग्नोर इट. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी, तो आप इग्नोर कर सकते हो इसे. एंड या ये तो EWS का था. व्हाट अबाउट NCOBC? लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम NCOBC, अगेन सर्टिफिकेट डेट वाज सेम. नाउ रिमेंबर NCOBC और OBC कास्ट सर्टिफिकेट दो अलग चीज है. एक रहता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर OBC. सेकेंड वन इज दैट इज NCOBC, नॉन क्रीमी लेयर OBC सर्टिफिकेट. तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको NCOBC बनाना पड़ेगा. अगर नहीं है तो बनाने के लिए अभी अप्लाई कर दो, शायद आ जाए जल्दी. ओके, तो इशू डेट जो भी हो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. देन स्टेट वट एवर यू लिव, इफ आई लिव महाराष्ट्र तो मैं महाराष्ट्र करूँगा. नाउ सीरियल और एंट्री नंबर ऑफ कास्ट, यहाँ पे क्या करना है? तो देखो अगर आपको नहीं पता क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आई बटन दिख रहा होगा, आइकॉन, यहाँ पे क्लिक करो. व्हेन यू क्लिक हियर दिस पेज विल लोड एंड देन सिंपली गो टू योर स्टेट. जो भी आपका स्टेट, लेट से महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ऐसे कास्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कास्ट नेम एंड द एंट्री नंबर यू कैन सी हियर. तो जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे नाम है आपका, जो भी कास्ट का, यू कैन चेक एंड वहाँ पे एंट्री नंबर आप चेक कर सकते हो. लेट्स से ये जो कास्ट है, अगर मैं इससे बिलोंग कर रहा हूँ, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ये लिखा है तो आपका एंट्री नंबर क्या होगा? 43. तो यहाँ से जो भी एंट्री नंबर है आपको ये पिक करना है एंड सिंपली आपको आपके कैट फॉर्म पे आना है और उसे फिल कर देना है. सिमिलरली फॉर कास्ट एंड कम्युनिटी नेम, आपके इसमें ऑलरेडी मेंशन होगा, आप वही सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो. नहीं समझ में आ रहा, यू कैन सिंपली क्लिक हियर, आपको यहाँ से बहुत सारी चीज
मतलब जो भी डेटा है आपको मिल जाएगा। ओके, दिस इज फॉर एनसी ओबीसी। सिमिलरली फॉर एससी एसटी यू कैन ऑल्सो सिंपली क्लिक, यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो क्लिक करके आप मिल जाएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर आपको यहाँ क्लिक करूँगा तो ऐसा फॉर्म ओपन होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो भी स्टेट से आप वो सिंपली उस स्टेट पे क्लिक करो। लेट्स से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में क्लिक करूँगा तो यू कैन सी दिस, महाराष्ट्र पे क्लिक करने पे मुझे ऐसा कुछ पीडीएफ निकला है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कास्ट है उसके आगे एक नंबर है, दैट इज 14, 15, 16, 17, 18। दिस इज योर एंट्री नंबर। तो आप यहाँ से जो भी है वो आप फिल कर सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका। सिमिलर फॉर एस टी ऑल्सो, आपको भी सेम वे में जाना है। अगर कास्ट नंबर आपको नहीं पता, यहाँ पे सिंपली क्लिक करो, एक फॉर्म पीडीएफ ओपन होगा। यू कैन सी दिस इज अ शेड्यूल लिस्ट फॉर द ट्राइब। ओके, शेड्यूल ट्राइब पर्सन्स। तो यहाँ की वैकेंसी ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो आप जो भी स्टेट के, अपना स्टेट देख लो, स्टेट के आगे जो भी नंबर है आपके कास्ट के आगे, वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। होप इट इज़ क्लियर। तो आई एम फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, आई कुड सिंपली फिल अ जनरल। ऑल्सो आप जो भी का कैटेगरी सेलेक्ट से आप यूडब्ल्यू सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये इसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। सो दैट इज मैंडेटरी टू अपलोड द सर्टिफिकेट। ओके, सो आई एम फ्रॉम अ जनरल, तो जनरल से जाऊँगा मैं। सो डू यू बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी? अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो आप येस करो। आपके जो भी इश्यूज है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो येस करके। ओके, एंड आपकी जो नंबर है पीडब्ल्यूडी यू डी आई डी नंबर, वो आपको यहाँ फिल करना होगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट येस यू हैव टू फिल। आप पीडब्ल्यू कैटेगरी कौन से बिलोंग कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन, कहाँ पे आप फॉल कर रहे हो, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इफ यू आर फ्रॉम ऑटिज्म यू कैन सिलेक्ट डी। ऑल्सो डू यू रिक्वायर व्हील चेयर? तो ये आपके लिए है, आप जो भी अपने अकॉर्डिंग सही से फिल करो। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो ये यहाँ पे सिलेक्ट करना भूलना मत। अगर आप यहाँ मिस कर गए तो लाइक बाद में आपको इशू हो सकता है टेस्ट डे के दिन। तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ऑल्सो रिमेंबर, जो भी आप अगर स्क्राइब के लिए येस कर रहे हो, यू नीड टू कैरी एफिडेविट। ओके, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? एफिडेविट कैसे करवाना है? तो सी दिस इन द फर्स्ट पेज ऑफ कैट, you can see here scribe affidavit. You can simply see this is the format। इस फॉर्मेट में यू कैन सिंपली लाइक यही सेम चीज़ आप उठा सकते हो और यहाँ पे जो भी डिटेल फिल करके आप एफिडेविट इसका बनवा सकते हो। ओके, होप इट इज़ क्लियर। सिमिलरली बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि मेरा सर्टिफिकेट जो है एनसीओबीसी है, सेंट्रल वर्क करेगा गवर्नमेंट वर्क करेगा नहीं। तो फॉर देम एनसीओबीसी सेंट्रल भी वर्क करेगा, गवर्नमेंट मतलब आपका स्टेट गवर्नमेंट है तो भी वर्क करेगा। ओके, तो दोनों चलेगा। सेम फॉर एसएसटी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आपके पास है, बोथ विल वर्क। ईडब्ल्यूएस ऑल्सो बोथ विल वर्क, सेंट्रल स्टेट बोथ। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऑल्सो यहाँ पे एक और आप लोग का डाउट रहता है कि लेट्स से आई एम फ्रॉम ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, तो उसमें साइन किसका रहना चाहिए? तो यू कैन सी, अगर आप इसे ओपन करो तो यहाँ पे कंडीशंस गिवन है। तो बहुत बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें ये भी फिल करना है क्या, एंड वी हैव टू पेस्ट दिस ऑल्सो, सबमिट दिस ऑल्सो? नहीं, ये फॉर्मेट आपको गिवन है बिकॉज टू नो कि आपके इसमें ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो आप सिंपली देख सकते हो आपके जो सर्टिफिकेट में ये सारे कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। अगर आपके इसमें सारे कंडीशंस हैं देन वेल एंड गुड, आपका जो सर्टिफिकेट है वैलिड है। ओके, एंड दिस इज द समथिंग जो भी देख सकते हो। यहाँ पे सिग्नेचर किसका होना चाहिए? तो यू कैन सिंपली विजिट हियर, मैंने सी हियर, यहाँ पे आपको एफ मिल जाएगा। एफ में आप सिलेक्ट करो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपके यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं अगर आप यहाँ पे एक बार चले जाए तो। बट स्टिल आपको तो जाना नहीं है, आप ग्रुप्स में पूछोगे बट यहाँ पे नहीं जाके देखोगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे आके देख लो। तो दिस इज द थिंग, लाइक यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो आई एम फ्रॉम ईडब्ल्यूएस एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको कवर किए गए। ओके, दीज आर द थिंग। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ भी गिवन है, तो आप ये भी एक बार चेक कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो। ओके, एनसीओबीसी वाले को कौन सी अथॉरिटी इशू करनी चाहिए एंड ऑल, तो वो सब कुछ यहाँ पे गिवन है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो किसके साइन होने चाहिए, यहाँ पे मेंशन भी है। दैट इज से ये डीएम, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, दैट द पर्सन इनके आपके साइन होने चाहिए। सो इट इज़ ऑलरेडी गिवन हियर। और यू कैन सिंपली चेक आउट द format. You can see here, when you can see open NCOBC certificate, it is already mentioned here, district magistrate, deputy commissioner, etc.
ETC में क्या है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मैंने अभी बताया था जस्ट, FAQ में आप देख चेक कर सकते हो। तो या ये सब देख लो, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डू कमेंट डाउन, मैं बता दूंगा कि क्या करना है आपको। ये सेम चीज़ यहाँ पे भी, दिस फॉर योर रेफरेंस, यूज इट एज ए रेफरेंस, इसे फिल करके सबमिट नहीं करना है। होप इट इज़ क्लियर। तो आप ये भी सबमिट कर दोगे। तो यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो वेल एंड गुड। ऑल्सो मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, अगर आप कोई सर्टिफिकेट, लाइक लेट से आप सिलेक्ट कर रहे हैं NC OBC, तो आपको आपके सर्टिफिकेट तो अपलोड करना ही है, यू हैव टू अपलोड अ सर्टिफिकेट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपको उसी सर्टिफिकेट का एक जेरोक्स भी लेना है, और यू कैन से कॉपी, प्रिंट कॉपी ले लो, जेरोक्स कॉपी, वॉट एवर कॉपी, टेक अ कॉपी एंड सिंपली साइन योर सेल्फ, लाइक अटेस्टेड चाहिए वो, एंड दोनों को एक PDF में बना के यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यू कैन सी हियर इज द अपलोड ऑप्शन, क्लिक हियर, यहाँ पे जाके आपको अपलोड करना है। गो अहेड, तो मैं जनरल से जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो डू आई बिलोंग टू PWD? नो, आई एम नॉट। अगेन एड्रेस, एड्रेस अब देखो, यहाँ भी डाउट रहता है कि आधार कार्ड में ये एड्रेस है, पैन कार्ड में वो है, तो मैं क्या फिल करूँ, व्हाट शुड आई फिल? तो यार आपके पास जो भी एड्रेस हो, आप जहाँ भी रहते हो वही फिल करो। लेट्स से आई एम फ्रॉम नागपुर, तो आई कुड सिंपली फिल माय एड्रेस। ओके ओके, कॉपी पेस्ट यहाँ काम नहीं कर रहा, तो लेट मी फिल दिस। ओके दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपको अच्छे से पूरा फिल कर लेना है। कंट्री इंडिया, स्टेट आपका जो भी है, तो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सेलेक्ट महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। टाउन एंड सिटी, तो मेरे केस में सब कुछ सेम है। पिन कोड 440000L। okay, email address alternate, if you have you can fill, otherwise it's okay. Now again, जो आपने ऊपर फिल किया है वो तो आपका था करंट एड्रेस, करंट एड्रेस यू कैन से अभी आप जहाँ पे भी हो। बट व्हाट अबाउट अ परमानेंट एड्रेस? कोई आपका परमानेंट एड्रेस हो सकता है कि आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो बट आप रहते हो जयपुर के हो, तो परमानेंट एड्रेस में आप जयपुर का डाल सकते हो। और सिंपली अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो कि मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस से सिमिलर है, तो ये आप यस क्लिक कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड, अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है और अभी जो आपने फिल किया था वो आपके जॉब लोकेशन का एड्रेस है, तो कैन सिंपली सेलेक्ट नो ऑप्शन एंड फिल योर परमानेंट एड्रेस। अच्छी बात है, शायद बाद में कोई इशू ना है, तो इस पर ध्यान दे सकते हो आप। तो फॉर माई केस बोथ सेम, तो मैं यस कर दूंगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आप किसी का भी नंबर डाल सकते हो, पापा मम्मी जिसका भी आपको डालना है। तो आई कुड राइट माई ब्रदर्स नंबर। ओके, सो हियर आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है। ओके, व्हेन यू क्लिक हियर आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ भी बहुत लोगों को इशू रहता है, व्हेन यू क्लिक हियर एंड स्टार्ट टू अपलोड योर फोटो, द थिंग इज आपको एक प्रिस्क्राइब साइज गिवन है। ओके, यू कैन सी आई ऑलरेडी अपलोडेड द फोटो, बट यहाँ पे प्रिस्क्राइब साइज आपको गिवन है, दैट इज दिस शुड बी 1200 into 1200 पिक्सल एंड द मैक्सिमम साइज वाज 1 MB। तो अब क्या करना है, 1 MB का मैक्सिमम साइज है तो आपको कैसे करना है? तो जो भी आपके साइज हो, यू कैन सिंपली गो टू इमेज कंप्रेसर वेबसाइट एक है, यू कैन सी द लाइक अ डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मैंने लिंक डाला है, वहाँ पे सिंपली जाओ। व्हेन यू गो देयर आपको लुक दिखेगा, अगर आप लिंक पे क्लिक करके गए हो तो यहाँ से सिंपली आपको अपना फाइल फोटो आपका जो भी है चूज़ करना है। वंस यू सिलेक्ट द फोटो, यहाँ पे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। आपको एक प्रेस्क्राइब साइज गिवन है 1 MB, तो आई वुड रिकमेंड यू टू कीप इट अराउंड 120 KB और लेट से 100 KB। 100 KB आप सिलेक्ट करके आपको फोटो चूज करने का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे कॉम्प्रेस, तो ये कॉम्प्रेस हो जाएगा। मैं 100 KB क्यों कहा, बिकॉज एक बार आपने कॉम्प्रेस कर लिया सारे आप फॉर्म में आप वो फिल कर सकते हो। इधर यू कैन चूज दिस वे, अदरवाइज बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने तरीके से अगर आपको इजी वे आता है तो उससे आप कर सकते हो। होप इट इज क्लियर। सिमिलर फॉर सिग्नेचर ऑल्सो, सिग्नेचर 80 KB का चाहिए तो उसे भी आप देख लेना। जैसे आपने सब कुछ फिल कर लिया, यू हैव एन ऑप्शन टू सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर दो। ओके, प्लीज व्यू द फोटोग्राफ बिफोर सबमिट, बिफोर यू सबमिट यू कैन वंस व्यू द फोटोग्राफ, तो एक बार व्यू पे क्लिक कर लो, जो भी आपके फोटोग्राफ से आपको दिख जाएंगे। कूल। So once you fill that section, now you come to the academic section.
In academic section, you have to fill all the details related to your acads. Now you can see here the 10th board. तो आप जिस भी बोर्ड से थे, इधर यू आर फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड, ओके एसएस, आप सीबीएसई से हो तो आप सीबीएसई के लिए चूज कर सकते हो, बट आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आई कुड चूज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। नाउ कौन से मंथ में आपने कंप्लीट किया, तो अब यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट होता है कि मैं फिल क्या करूँ। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड, आपके जो भी लिविंग सर्टिफिकेट पे हो या फिर मार्कशीट पे गिवन हो, आप वो डेट फिल कर सकते हो। लाइक इन माई मार्कशीट इट वॉज गिवन मार्च, आई कुड सिंपली फिल मार्च। सिमिलरली मैक्सिमम मार्क्स, नाउ रिमेंबर, हो सकता है आपका जो पेपर था वो बेस्ट 5 देख के बना, लाइक आपका जो सर्टिफिकेट बनाया होगा, आपका जो भी परसेंटेज कैलकुलेट हुआ होगा आपके स्टेट बोर्ड में, वो बेस्ट 5 देख के हुआ होगा या फिर बेस्ट 6, वट एवर जो भी हो, बट आपको सारे सब्जेक्ट कैलकुलेट करना है। इन माई केस देर वॉज 5 सब्जेक्ट जिसे कैलकुलेट करके परसेंटेज बनाया जाता है, बट टोटल सब्जेक्ट हमारे 6 थे, तो आई कुड कैलकुलेट 6 सब्जेक्ट। एंड वहाँ पे ग्रेड वाले सब्जेक्ट भी थे, ऐसा नहीं कि 6 सब्जेक्ट है, ग्रेड वाले कुछ 4-5 एक्स्ट्रा थे जिसमें ABCD ग्रेड था, तो यू कैन इग्नोर सिंपली दैट। ग्रेड वाले को कन्वर्ट करते हैं मत बैठो, इग्नोर इट। व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपके मार्क्स गिवन है, कैलकुलेट ऑल द मार्क्स, टोटल मार्क्स जितने बने उससे भी कैलकुलेट कर लो। सो आई हैव 6 सब्जेक्ट एंड 6 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के पर इस सब्जेक्ट था, तो 600 वाज माई टोटल मार्क्स। व्हाट आई स्कोर्ड आउट ऑफ 600, तो 497 विच इज माई स्कोर। यू कैन सिंपली फिल योर परसेंटेज। ना परसेंटेज में भी बहुत लोग गलत कर देते हैं, एग्जैक्ट परसेंटेज निकालो, कैसे निकालते हैं, 497 out of 600 into 100, so you will get the percentage like 82.83, so this is my 10th percentage। so I hope ये समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे गिवन है कि आपको कैसे निकालना है, you can check it out। now 12th, तो 12th में अगर आप डिप्लोमा किए हो तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप 12th किए हो तो आप 12th सेलेक्ट करो। तो आई डिड 12th, तो मैं 12th सेलेक्ट करूँगा। अगेन माई बोर्ड वॉज सेम, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। Again, year of completion. In this case, my year of completion was Feb 2018. So again, discipline, whatever discipline you have from, like science से हो साइंस करो, कॉमर्स से कॉमर्स, आर्ट्स से हो आर्ट्स, कुछ और है अदर्स में कर दो, बट मेरा डिसिप्लिन मुझे पता है साइंस है, तो मैं साइंस सेलेक्ट करूँगा। मैक्सिमम मार्क, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द मार्क्स, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स मेरे 650 बन रहे थे। आई स्कोर्ड, दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट। अगेन यहाँ भी सेम केस है, यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द थिंग, बेस्ट 5 अगर है तो भी आपको सारे सब्जेक्ट कैलकुलेट करना है ना। बैचलर्स, अब यहाँ फिर से डाउट आता है बच्चों को। द डाउट वॉज, आई एम इन फाइनल ईयर, तो मैं क्या करूँ, और मैं अभी सेकेंड ईयर पास आउट हुआ, मैं 5th सेम चल रहा है, तो मुझे फिल करना चाहिए कैट। येस, यू कैन फिल द कैट बिकॉज यू आर इन फाइनल ईयर। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो सिंपली क्लिक येस ईयर एंड अगेन फिल एवरीथिंग, जो भी आपका ड्यूरेशन है जितना भी है। लेट्स से यूर इंजीनियर, तो आप 4 ईयर डिग्री में हो, तो यहाँ पे करंट सेमेस्टर जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है, यू कैन से 4 ईयर डिग्री में हो तो आपका आई थिंक 11th सेमेस्टर चल रहा होगा, ओके, बिकॉज सॉरी नॉट 11th, 7th सेमेस्टर चल रहा होगा, या 7th सेमेस्टर आपका चल रहा होगा, जो भी इंस्टीट्यूशन आप फिल कर सकते हो। तो ऐसा आप कर सकते हो, अगर आप 3 ईयर डिग्री में 3 ईयर करो, अभी जो सेमेस्टर होगा आपका 5th सेमेस्टर होगा, राइट। वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि आपका जो पेपर है वो सेमेस्टर वाइज नहीं होता है, वो तो लाइक ईयरली होता है, वंस इन अ ईयर। तो मैं क्या फिल करूँ, अगेन आप फाइनल ईयर में हो, आपका ईयरली पेपर होता है, बट करंट सेमेस्टर अगर देखा जाए तो 5th सेमेस्टर हुआ ना, तो यू कैन सिंपली फिल सेमेस्टर 5 ईयर। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सेमेस्टर 5 फिल करो, इट विल बी काउंटेड, ओके। तो यहाँ कोई इशू नहीं होगा, आप ये फिल कर सकते हो। अगेन इंस्टीट्यूशन जो भी आप फिल कर दो। और और now the next case was, you completed your graduation but you are waiting for your final result। आप कंप्लीट तो कर लिए बट आप फिर भी वेट कर रहे हो आपके फाइनल रिजल्ट के लिए, स्टिल आपको भी यही फिल करना है, आर यू इन फाइनल ईयर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक कंप्लीटेड द बैचलर्स डिग्री, अगर आपके पास सब कुछ है, आपके रिजल्ट्स है, बट नहीं है तो आपको यही यूज कर सकते, इसके थ्रू भी आप फिल कर सकते हो। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड, वेट कर लो कुछ देर, ठीक है, वेट कर लो जब तक आपका डिग्री आ जाए, मतलब लेट से हो जाएगा बिकॉज इट्स मंथ ऑफ अगस्त, तो ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट तो आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस मंथ तो आ जाएगा, तब तक वेट कर लो, क्या ही जाएगा, बाकी सब फिल करके रखो, सिर्फ आपको जो मार्क्स हैं फिल करने उसके लिए वेट कर लो ना। ये सब आप फिल कर लोगे, डिग्री वॉट एवर थिंग इज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे दिल्ली वाले को बहुत इशू आता है,
कि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो दिल्ली देखो सिंपली, यू कैन सी द दिल्ली ऑप्शन। ओके, इट मीन्स नथिंग बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ दिल्ली आप सेलेक्ट कर लो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। डिसिप्लिन ना, यहाँ पे बहुत इशू आता है डिसिप्लिन में कि मैं इंजीनियर हूँ या नहीं। तो इंजीनियर हो या नहीं तो आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक यू आर डूइंग बीई, ठीक है, या फिर आप बीटेक कर रहे हो, तो आप इंजीनियर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसके अलावा कुछ भी कर रहे हो, लेट्स से यू आर बीएससी स्टूडेंट, यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, लेट्स से मैं आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ साइंस। इफ़ यू आर फ्रॉम फाइनेंस, बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, व्हाटएवर, बीसीए वाले भी, यस, बीसीए वाले भी नॉन इंजीनियर में आएंगे। गॉट इट। कमेंसमेंट, जब कब आपने ज्वाइन किया, तो जब भी आपने ज्वाइन किया, यू कैन फिल इट। कंप्लीशन जो भी आपका था वो फिल कर सकते हो। एग्रीगेट मार्क, एग्रीगेट मार्क में क्या करना है, तो टिल नाउ आपके जितने भी सर्टिफिकेट लाइक रिजल्ट्स अवेलेबल है, लेट्स से आप 5th सेमेस्टर में हो बट आपके पास 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट अवेलेबल है, या फिर आपका 3rd सेमेस्टर तक का रिजल्ट अवेलेबल है, आपको फिल करना, उसके मार्क्स का कैलकुलेट करना है। एग्रीगेट मीन्स व्हाट, टोटल, आपको टोटल करना है, उसका परसेंटेज निकालना है, एंड देन वो परसेंटेज यहाँ पे फिल करना है। ओके, ऑल्सो बिकॉज आप फाइनल ईयर में हो या फिर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। दैट इज, लेट्स कम टू द फर्स्ट पेज ऑफ कैट 2024। यू कैन सी हियर द फाइनल ईयर सर्टिफिकेट। आपको ये फॉर्म जो ये फिल करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपके जो कॉलेज में है अथॉरिटी जो भी है, प्रिंसिपल है वो हुसएवर, आपको उनसे यहाँ पे सिग्नेचर एंड सील यहाँ पे लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कीप इट विथ यू। एंड आई डोंट नो कहाँ अपलोड करना है इसे, बिकॉज मैंने कभी फिल नहीं किया इस अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब इसकी तरह मैंने फिल नहीं किया। वाई वी यू शुड फिल दिस, और कैट क्यों मांगता है आपसे, टू नो कि आप एटलीस्ट 50% मार्क्स ला रहे हो कि नहीं। इफ यू आर जनरल, इफ यू हैव अ कैटेगरी, यू मस्ट हैव 45% टोटल। तो इतना अगर आपका आ रहा है तो वेल एंड गुड, यू आर एलिजिबल फॉर द कैट एंड फॉर द अदर प्रोग्राम ऑफ एमबीए। बट अगर आपका इतना नहीं बन रहा तो यू आर नॉट एलिजिबल, राइट। तो बस यही कंफर्म करने के लिए आपसे फॉर्म फिल करवाया जाता। फॉर्म अभी कहाँ अपलोड करना है, यहाँ पे कैट फॉर्म में आई डोंट सी एनीवेयर कहीं पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, बट स्टिल फिल करके रख लो। ओके, सो होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। तो अब मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे तो फिल करना पड़ेगा। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, तो मैं यहाँ नो पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे यस माई लाइक, so let me fill this quickly. Okay, so you can see I already filled this section. I am from a 3 year, like my duration जो था 3 year था, and this is state university. You can select whatever you have. IIT से तो IIT कर लो, NIT से INT, अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। अगेन डिग्री, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस था मेरा। ओके, तो जो भी आपकी डिग्री हो, जो भी हो, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब यहाँ क्या होता है, डिसिप्लिन में बहुत इशू आता है लोगों को। लाइक आई एम फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ साइंस, बट मैंने जो साइंस था वो जनरल साइंस था। दैट्स उसमें PCM दोनों था, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों था। तो अब मैं क्या चूज़ करूँ, आई हैव नो ऑप्शन ईयर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो तो आप अदर चूज़ कर लो, बट इफ़ यू नो कि PCM इज़ नथिंग बट साइंस, तो आप साइंस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपका अगर ऑप्शन ना मिले यहाँ पे, तो अदर्स चूज़ कर सकते हो, जिसमें कोई इशू नहीं है, कुछ गलत नहीं है। सिमिलरली फॉर यूनिवर्सिटी ऑल्सो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं मिल रही है, आपने पूरा ढूंढ लिया, बहुत मेहनत कर ली, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में आपको अदर्स ऑप्शन मिल जाएगा। यू कैन सिंपली चूज अदर्स एंड राइट द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको मार्क्स का पूछा गया है कि एग्रीगेट मार्क्स आपका क्या है। अगर आप कोविड बैच के हो तो आपको प्रमोशन पे पास किया, तो यू कैन सिंपली डिक्लेयर हियर दिस कि मैं कोविड बैच से हूँ, तो मैं प्रमोशन पे पास हुआ, मार्क्स मेरे पास नहीं है, तो यू कैन सिंपली क्लिक हियर। अदरवाइज अगर आपके पास मार्क्स है तो सिंपली क्लिक हियर एग्रीगेट मार्क्स। जो भी है एग्रीगेट बोला है यहाँ पे, टोटल मार्क्स आपको कैलकुलेट करना है, एंड जो भी आपका परसेंटेज बन रहा है यहाँ पे फिल करना है। तो आई हैव परसेंटेज 73.26 इन माई ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव और यू आर अंडरगोइंग डुअल और 5 year इंटीग्रेट कोर्स। येस नो इट्स ऑन यू। आप अगर इंटीग्रेट प्रोग्राम कर रहे हो, डुअल डिग्री, सॉरी नॉट डुअल डिग्री, डुअल इंटीग्रेशन बोलते हैं, लाइक आफ्टर बैचलर्स यू आर डूइंग मास्टर्स। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो यस करो, नहीं कर रहे हो तो नो करो। तो मैं तो नहीं कर रहा, तो मैं नो करूँगा। अगर आपके पास एक और बैचलर डिग्री है तो यू कैन सेलेक्ट दिस। ओके, लेट्स से BCom LLB BE ऐसा आपने कुछ किया है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, बट मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। मास्टर डिग्री आपके पास है, इफ़ यस यू कैन सेलेक्ट यस, नहीं है तो नो कर दो। अगर आप IA, लाइक FIAI का आपने कोई कोर्स किया है,
प्रोफेशनल, तो आप उसे येस कर सकते हो, फिल कर सकते हो उसका डिटेल। यू कैन सिंपली क्लिक येस एंड फिल द डिटेल। नहीं किया है तो नो कर दो। सी एस कुछ किया है तो येस, नहीं किया है तो नो कर दो। ओके। तो ऑल्सो जो सी ए लोग हैं उन्हें भी इशू आता है, सी एस और सी एम ए वालों को, कि हमने तो डिग्री नहीं किया बट हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री है, तो डू वी आर एलिजिबल फॉर आई एम कॉल्स, और क्या हम कैट दे सकते हैं? यस यू कैन। आपने अगर डिग्री नहीं की है बट आपने सी एस किया है तो स्टिल यू आर एलिजिबल, तो आप इसके थ्रू भी कैट दे सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको नो नो सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे आपको नो कर दो, मतलब मैंने तो नहीं किया कुछ। तो या दिस इज द फॉर्म अकेडमिक्स पार्ट डन। एक बार आप ओवरव्यू कर सकते हो वापस से, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, तो ओवरव्यू करना, देन उसके बाद सेव नेक्स्ट कर देना। ऑल्सो जब तक आप पेमेंट नहीं पे किया तब तक आप आके चेक करके चेंजेस कर सकते हो। सो डोंट बी हरी टू पे इट। बॉस लोग जल्दी पेमेंट कर देते हैं और उन्हें 2-3 बार फॉर्म फिल करना पड़ जाता है, मतलब गलतियाँ होती रहती हैं उनसे, तो क्या कर सकते हो। ना हियर वर्क एक्सपीरियंस। तो अब जो वर्क एक्स वाले हैं उनके लिए आ जाओ, क्या करना है बताते हैं। अब देखो वर्क एक्स में क्या सीन है, यू कैन सी ऑन स्क्रीन कि एक लिस्ट आ रही होगी फॉर द पीपल हु आर डूइंग वर्क एक्स, उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीड है। तो वर्क एक्स किसे काउंट किया जाता है? इफ यू आर वर्किंग अंडर एनी फर्म, you should have joining letter or offer letter, any one of this. You should have salary slip, आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपने जॉब छोड़ दिया है या फिर टिल द डेट जब आप कॉलेज ज्वाइन करो तब आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, these are the mandatory if you are receiving your salary in cash. In this case you should have ITR, आपके पास ITR होना चाहिए जहाँ पे आप मेंशन किए हो कि आपने इतने का ITR फिल किया हो, that will be counted as a proof. Okay, similar for the person who are from a business family, okay, और जिनका फैमिली बिजनेस है, खुद का सब कुछ, उन्हें भी अभी जो मैंने सेम चीज मेंशन किया, लाइक जॉइनिंग लेटर, सैलरी स्लिप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब तो आपके पास होना चाहिए। इवन इफ आर गेटिंग सैलरी इन कैश, आपके पास ITR होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू नीड एक्स्ट्रा, जब आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो, दैट इज आपको जो चाहिए, आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर GST और MCA ROC के अंडर में, तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये है देन वेल एंड गुड, आप मतलब इसे शो कर सकते हो एज अ वर्क एक्स। नेक्स्ट वाज फॉर द पीपल और द एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? यू मस्ट हैव MCA ROC, और लाइक MCA और ROC फर्म रजिस्ट्रेशन जो भी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जहाँ पे आपका नेम मेंशन, आपकी कंपनी का नेम मेंशन होना चाहिए। GST के अंडर में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो GST होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट लास्ट 2 फाइनेंशियल मंथ का, मतलब ईयर का। तो ऑडिटेड आपके पास अगर सिंगल भी है तो भी काम चल जाएगा। लेट्स से मेरे जो स्टार्टअप उसको 1 साल हुआ है, तो मेरे पास 1 साल का ऑडिटेड ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई कुड सिंपली शो दैट कि चलो हाँ मैं स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, दिस इज माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड, अगर आप लाइक स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो तो आपके पास DPIIT जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें से कोई एक भी चल जाएगा आपके पास। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है इट इज़ MCA और ROC का जो भी है, और GST ये आपके पास होना चाहिए। सेकंड, अगर आपके जो भी आपका स्टार्टअप उसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो आपके पास पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, या यही सब है। आप देख सकते हो एक बार लिस्ट जो भी गिवन है, यू कैन चेक आउट कि आपके पास वो है या नहीं। सो यू कैन सी आई हैव फिल्ड माई वर्क डिटेल। तो हियर इज द एजुकेशन, मैं टीचिंग में था तो यहाँ पे फिल कर दिया। अगेन दिस इज राइट नाउ आई एम वर्किंग विथ प्रेप भी, तो इट इज हियर आई हैव IT एक्सपीरियंस ऑल्सो, तो दिस इज व्हाट आई फील्ड। नाउ रिमेंबर, आपको जो वर्कएक्स ऐड करना है वो टिल द डेट ऑफ 31 जुलाई तक होना चाहिए। तो लेट्स से दोज हु आर जस्ट ग्रेजुएटेड एंड दे जॉइन द कंपनी, और जो भी फर्म में ज्वाइन किए, बट देयर ज्वाइनिंग डेट वाज 1 अगस्त, तो वो फील्ड मतलब यहाँ पे वर्कएक्स नहीं डाल सकते। आप विदाउट वर्कएक्स में ही जाना पड़ेगा आपको फॉर नाउ, बट लेटर स्टेज में आप फिल कर सकते हो। तो अगर आपके 31 जुलाई तक का कितना जो भी वर्क है आप यहाँ पे शो कर सकते हो। एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट फॉर द लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स यू कैन सिंपली फील लाइक, यहाँ पे आप अदर्स करके चूज करके यहाँ पे फिल कर सकते हो। सो या दिस इज व्हाट काउंटेड एज वर्क एक्स। डॉक्यूमेंट क्या नीड है मैंने पहले बता दिया, तो होप
आपको समझ में आ गया हो। तो लेट्स से यहाँ तो हो गया है, सेव नेक्स्ट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि फिल क्या करना है, कौन सा कोर्स हमें नहीं फिल करना है, कौन सा करना है। देखो वैसे तो आपको डॉक्टरेट प्रोग्राम नहीं करना है, बिकॉज अगर आप एमबीए सिर्फ करना चाहते हो और डॉक्टरेट नहीं करना चाहते हो तो आपको डॉक्टरेट फिल नहीं करना है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, राइट। सेकेंड थिंग, आप अगर किसी कोर्स में इंटरेस्टेड ना हो तो उसमें भी आप इग्नोर कर सकते हो, उसे सिंपली आप अवॉइड कर सकते हो। बट बट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, भले ही आपको पीएचडी ना करना हो, अगर आपको कॉल आ भी जाए तो आप तो डेफिनेटली जाने वाले नहीं हो, राइट। तो टेंशन मत लो, यू कैन सिंपली डू व्हाट, सिंपली सिलेक्ट ऑल। ओके, आप बोलेंगे ये क्या बात हुई। तो देखो अगर आपको चूज करना है तो आप आराम आराम से चूज करके रिमूव कर सकते हो। यू कैन सिंपली ईपीजीपी को आप हटा सकते हो अगर आप ईपीजीपी ना करना चाहते हो तो। ओके, अगर आप पीएचडी तो आप नहीं करने वाले होंगे शायद से, तो अगर करने वाले तो बहुत अलग ही बात है आपकी, तो ये आप हटा सकते हो, इसे रिमूव कर सकते हो, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो क्यों, हो सकता है गलती गलती में आप कोई इंपॉर्टेंट कोर्स जो आपको चाहिए हो वो आपने हटा दिया हो। लेट्स से मैंने गलती से आई एम अमृतसर का हटा दिया, एमबीए, पीएचडी हटाना था मैंने गलती से हटा दिया, बट मैंने ध्यान नहीं दिया एंड आई मिस्ड इट। तो उससे बेटर आई वुड रिकमेंड सेलेक्ट ऑल कर दो, इट इज़ नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं होगा। आपको कॉल भी आएगा तो आप थोड़ी जाने वाले हो। तो यू कैन सिंपली लाइक सेलेक्ट ऑल, देन सिटी, बिकॉज लास्ट ईयर जो था इंटरव्यूज ऑफलाइन हुए थे, तो हो सकता है इस बार भी ऑफलाइन हो, देर इज़ अ हाई चांस। तो आपको सोच समझ के सिटी सेलेक्ट करना है, आपके नियर बाय जो भी सिटी है उसे सेलेक्ट करो, सो दैट उस टाइम पे आप अभी तो सिलेक्ट कर लोगे कुछ दूर दूर में घूमना जाना है ऐसे, बट अगर ऑफलाइन हो गया तो आप फंस जाओगे, बिकॉज सारे एग्जाम मतलब इंटरव्यूज बहुत आसपास में रहते हैं। लेट्स आज आई एम अहमदाबाद का है तो कल परसों जाके आई एम कलकत्ता का होगा या फिर कोई कोई कोड का हो जाए, तो क्लैश ना करे। बिकॉज ऑफ दैट आई वुड रिकमेंड कि पास की सिटीज रखो, इन केस अगर थोड़ा बहुत क्लैश भी करते हो तो आप आसपास में ही रहोगे तो आप आराम से जा सकते हो। बिकॉज आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर आई एम, सो आई कुड सिंपली डिससेलेक्ट दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, 7 next. Please select a program name. So I don't want to apply, फिर भी क्यों select करने के लिए कह रहा। ओके तो चलो एक select कर देते हैं। ओके डन, सो सेव नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, जो भी आपकी जहाँ भी आप जा सकते हो पेपर देने। आई वुड सजेस्ट घूमने के लिए मत फिल करो। अगर हाँ, अगर आप जस्ट चिल ऐसे ही देना चाहते हो तो आप घूमने के लिए फिल कर सकते हो, बहुत से लोकेशंस है। बट अगर आप सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हो, सीरियसली फील कर रहे हो, तो यू कुड फील एटलीस्ट सीरियस वन, जो भी आपका सीरियस है। लेट्स से मैं नागपुर से, तो मैं नागपुर फिल कर सकता हूँ। नेक्स्ट बेस्ट सिटी जहाँ मैं जा सकता हूँ पेपर देना है, तो नेक्स्ट बेस्ट कहाँ पे जा सकता हूँ। ओके आई कुड सिंपली सर्च हियर, तो मध्य प्रदेश का इंदौर डाल दो। थर्ड बेस्ट सिटी वॉज कोलकाता डाल दो। ओके थर्ड बेस्ट में कोलकाता नहीं, थर्ड में हैदराबाद डालते। फोर्थ वॉज कोलकाता। फिफ्थ क्या डालना यार, फिफ्थ पटना डाल दो। नाउ सेव नेक्स्ट। अब जो आएगा आपका दैट इज अ डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको हर चीज गिवन है। लेट्स से इट इज अ नेम, ओके, एंड दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू चार्ज यू, तो ये सब भी अच्छे से बताया। दो मोड है आपको पेमेंट का, एक एसबीआई पे से कर सकते हो या पे यू से, दोनों कहीं भी जाओ आप आराम से कर सकते हो। बट अभी मैं कहूँगा कि डोंट गो एंड पे इट, प्रीव्यू पे जाओ, प्रीव्यू करो, सारे फॉर्म जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो अच्छे से एक बार चेक करो। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ प्रीव्यू यू विल गेट, ये सारा आपको फिल करना, चेक करना है। ओके मैंने तो ऑलरेडी अच्छा फिल किया है, सही है मुझे बताया, तो आई कुड सिंपली इग्नोर दिस। ओके एक बार आपने प्रीव्यू चेक कर लिया, ओके सिलेक्ट कर दो। जब आपको लगे कि आप सब कुछ सही फिल कर चुके हो, कुछ एरर नहीं है, कुछ भी नहीं, तभी जाके सबमिट करो और पे करो। अदरवाइज हो सकता है कि थोड़ा सा एक माइनर एरर के कारण आपको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ जाए। तो आई वुड रिकमेंड प्रीव्यू 2 बार चेक करो अच्छे से, हर एक चीज, छोटी छोटी चीज,
पता नहीं चलता है कब क्या गलती हो जाती है। मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। जेड के फॉर्म में मैंने एक छोटी सी माइनर मिस्टेक कर दी थी, एंड मुझे लगा सही है सब कुछ, एंड व्हेन आई चेक मुझे सब सही लगा। बट मैंने ध्यान से नहीं देखा शायद, तो मेरे डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 19-20 का फ़र्क हो गया था। तो 19-20 के फ़र्क ने उतना तो मैटर नहीं किया उस टाइम, बट आपके लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप सीरियस अटेम्प्ट देने जा रहे हो, सही से देखो, सही से फिल करो। स्टिल इसके अलावा भी कोई अगर आपको डाउट हो, यू कैन कमेंट डाउन। जो भी डाउट्स है मैं ट्राई करूँगा कि क्लियर कर दूँ इफ़ पॉसिबल। अदर अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कुछ और, लाइक लेट्स से फॉर अदर फॉर्म आल्सो इफ यू नीड दिस काइंड ऑफ वीडियो, जिसमें मैं डिटेल आपको बताऊँ क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, सो डू कमेंट डाउन अगर आपको चाहिए हो तो। अदरवाइज आई थिंक यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, आप फिल तो कर ही लोगे इतना। सो यस, दिस इज द कॉस्ट, 2500 रुपये देने हैं एग्जाम देने के, तो आप फिल कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो गोइंग टू हेल्पफुल टू यू। इफ यू नीड एनीथिंग एल्स यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, एंड टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्रिपेयर हार्ड, कैट के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो टाइम वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो सही जगह पे, एंड हैव अ गुड डे। जय सिया राम।